Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS New Delhi, and today I am going to discuss one questions of psychology optional that has been asked in civil service examination 2015. And this question I have picked up deliberately because there are two kinds of questions in civil service examinations in psychology optional. One is where you know very clear cut answers, some specific aspects of the question you are well aware of, and very concrete answer could be given. For example, what is scheduling, and what are different kinds of scheduling. So it is a descriptive question, so anybody can answer. So why you will need a model answer for that thing? But there are some questions where the different students come up with different kind of answer. I have evaluated thousands of maybe thousands answer, more than 1,000 answer in my training program. So there are some questions where I find that answers of students differ. So this is the question where you will find that different students will try to answer the question in different way. And what is the questions? Question is that why is it important to understand psychological processes for other discipline of social sciences? Why is it important to understand psychological processes for other disciplines of social sciences? 2015 civil service examinations. Now try to understand this thing. If you look at this question, everybody would feel that it is quite simple, and why you are making model answer for this thing? I can answer this question. But try to write your answer and get it evaluated. Then compare your answer with 5 of your friends and see the differences. You will always find that there are approach differences, content differences. So which answer is most suitable? Question is this thing. You may debate. So here I am throwing light on that from my own experience. So just look at this thing. I will within 5 minutes I will try to answer this thing. See, psychology, when we talk about psychology, that is called scientific study of behavior and mental processes. It is a behavioral science, and term behavioral science is given. It is not reserved for only psychology. It is for other disciplines also. For example, according to Morgan and King, I am giving reference to Morgan and King because they are also researcher and they have written book also. That even sociology, if you read this book of Morgan and King, you will find that even political science, sociology, anthropology, economics, all these are behavioral science. Why? Because these disciplines, social science discipline, inescapably include what? Behavioral angle. It deals with human behavior. So these are also behavioral science, but focus may differ. For example, in sociology, we focus on group behavior, but in psychology, we study individuals' behavior. So this is the difference. So you need to take, while you are trying to answer this question, take few examples and then you give a reason why. So if I take, for example, political science, which studies political processes and institutions and many things, different aspect related. You need not to come up with a perfect definition of political science. Then when while trying to understand political processes, while trying to understand institutions, political institutions, why is it important to understand individuals' psychological processes? I will give you analysis. See this thing. When suppose we want to understand that voting behavior of a particular community in our India, in India, so can we understand this political process, why some community are not participating or participating at the minimal level? What are the reason? Can we give a perfect explanation, integrated explanations, without taking into account the attitude of the individual, attitude of the community towards political parties, political institutions, constitutions, and
वॉट एवर इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं क्या? विदाउट अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिलीव्स ऑफ द कम्युनिटी, कितना ट्रस्ट है उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ के, उसको हम नहीं समझ सकते। सो इट बिकम इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड, हैव knowledge of attitude and what are the factors that influences attitude. See this thing. So here is the importance of this thing. Take example. I will try to write the things in few words also, so that मैं लंबा बोल रहा हूँ, इसको लिखा बहुत जल्दी से जा सकता है। कि जैसे खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया महात्मा गांधी ने। So what would have been the reason behind that thing that time during freedom struggle? That while he was also trying to जनरेट पॉलिटिकल मूवमेंट, यहाँ पे वो मूवमेंट शुरू करना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने इस तरह का स्टेप्स जो लिया, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी। सो द मुस्लिम्स और दूसरी जो कम्युनिटी है उनका जो ट्रस्ट को अर्न करने के लिए उन्होंने किया, या कुछ और कारण से किया, यू कैन एनालाइज ऑलवेज। सो सी दिस थिंग दैट इन पॉलिटिकल साइंस, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस प्रॉपरली, पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ गिवन, जैसे वोटिंग परसेंटेज कम है या रिप्रेजेंटेशंस कम है या वीमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इनको समझने के लिए आपको इंडिविजुअल लेवल पे उसके एटीट्यूड का, उनके बिलीव्स का, उनके परसेप्शंस का एनालिसिस करना होगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स होलिस्टिकली। सो I have given this example from political science. Take example from economics. Daniel Kahneman, who have been given shared Nobel Prize also in decision making, he said that decision making process is influenced by, see, sometime you have money, sometime इकोनॉमिस्ट को अगर आप देखें तो उनके कभी कभी वो पजल्ड हो जाते हैं कि लोगों के पास पैसा है फिर भी वो खर्च क्यों नहीं कर रहे, मार्केट में लिक्विडिटी है लेकिन डिमांड क्यों नहीं। उसी तरीके से किसी चीज़ का जो शेयर मार्केट है या ये मनी मार्केट है, उसमें देखो सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो सेंटिमेंट्स के कारण चीज़ें अप या डाउन होती हैं, वहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में। तो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि you have money but you are not interested in expending money, आप उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, वो खर्च नहीं कर रहे हो, उसका क्या कारण हो सकता है। तो अगर मार्केट में इनसिक्योरिटी हो कि जॉब जाने वाली है, या कोविड में जैसे देखा हमने कि व्हाट कुड हैपन नोबडी नोज, सो अनसर्टेनिटी हो, ओके, सो देयर इज सपोज डिक्लाइनिंग जीडीपी, ये सब इंडिकेटर्स आ रहे हो, सो मे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे बी देयर and people may be motivated to save money or to wait for some time. तो अपने मनी होने के बाद भी लोग खर्च करने से डर सकते हैं क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। सी दिस इज साइकोलॉजी। फियर, एप्रीहेंशन may motivate individuals to withhold that things, वो डिसीजन को रोकने पे मजबूर कर सकता है। तो सी दिस थिंग, इवन इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं उसको विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, वी कांट अंडरस्टैंड। तो डैनियल कैनमैन का जो रिसर्च था वो डिसीजन मेकिंग के फैक्टर इन्फ्लुएंस, वो काफ़ी सपोर्ट करता है इसको। तो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कंप्लीट आंसर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक एक पॉइंट्स लिख दो, लेकिन इन दिस वे यू कैन गो इन सोशियोलॉजी विद द स्टडी ऑफ ग्रुप। लेकिन एक ग्रुप का बिहेवियर व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन व्हाई ग्रुप, जो जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम समझते हैं, तो दुर्ये है जो सोशियोलॉजिस्ट है, तो उसने कहा कि हम ये जो हमारा कास्ट है सोशल रियलिटी है, बट हाउ इट ऑपरेट एट द इंडिविजुअल लेवल में है दैट कास्ट आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी, वी एक्वायर आवर आइडेंटिटी एंड दिस बिकम योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑल्सो। तो ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, वन रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट्स, जहाँ पे एजुकेशन कम है, जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ, वहाँ पे ये भी कम था। तो उसका क्यों कारण, एक कारण ये भी है कि वन एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन गिवन दैट उनके लिए कास्ट आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे जैसे सपोज आप डॉक्टर इंजीनियर्स बन जाते तो आपका एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी हो जाता, तो टोटल डिपेंडेंस कास्ट आइडेंटिटी पे नहीं।
then in that case what happens that you may take on liberal attitudes, थोड़ा सा आप ले सकते हैं और आप थोड़े से लिबरल हो जाते हैं इस जो सोशल इंस्टीट्यूशन है मैरिज के बारे में कि हम इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे. सो सी दिस थिंग कि आज प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में इंटरकास्ट मैरिजेस का अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दे आर कोरिलेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग राइज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज. बस इतना नहीं है कि आप उसको बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मान लें, बट डेफिनेटली इट इज़ देयर. व्हाट आई वांट टू मेक ए पॉइंट विद दिस 3 एग्जांपल्स. आप बहुत सारे एग्जांपल्स तो लिख नहीं सकते 10 मार्कर में, तो व्हाट यू शुड डू दिस थिंग, पिकिंग अप फ्यू एग्जांपल्स, you make your point that without having knowledge of psychological process, जैसे पहले वाले में एटीट्यूड, दूसरे में मोटिवेशंस और फियर एंड अप्रीहेंशन को देखा, तीसरे में आइडेंटिटी को देखा हमें कि जैसे सेल्फ रिलेटेड आइडेंटिटी जिसको सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहते हैं उसको देखा. इनको समझे बिना हम उनके मैक्रो लेवल एक्सप्लेनेशंस को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, इन दैट यू विल फाइंड मैक्रो लेवल एक्सप्लेनेशन. And macro level explanations do require micro level input. तो इंडिविजुअल के लेवल पे, बिकॉज इंस्टीट्यूशन इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन है. तो द वे अ पर्सन थिंक्स, फील एंड बिहेव, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, मोटिवेशंस, हिस्टोरिकल चीज़ें, सभी कुछ इम्पैक्ट डालते. तो हमें किसी भी सब्जेक्ट का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकोलॉजी से कोलैबोरेशन करना, इसलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है. आपने देखा बिहेवियरल जो साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स का कोलैबोरेशन है. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जिसमें पिछले साल प्रीवियस ईयर में नोबेल प्राइज़ भी मिला इसमें. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो इन्हीं बात को हाईलाइट करता है कि उनमें हमने उस माइक्रो एक्सप्लेनेशंस को ज़्यादा इंटेंसीफाई किया गया कि देखिए इसका क्या महत्व है इसमें. समथिंग लाइक दैट जो पॉलिटिकल साइंस का साइकोलॉजी के साथ कोलैबोरेशंस है, उसी तरीके से सोशल साइंस का कोलैबोरेशंस है. ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है या जिसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या रिसर्चेस कहते हैं, वो इसी कारण से भी है कि हम दोनों चीज़ों, तो इसलिए आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हो कि ये चूँकि बिहेवियरल चीज़ें यानी साइकोलॉजी यानी इंडिविजुअल सभी, चाहे वो दूसरी सोशल साइंसेज जो भी हों, उनमें इंडिविजुअल एक कॉमन फैक्टर है, तो इसी कारण से साइकोलॉजी भी एक कॉमन फैक्टर है. यही आप कंक्लूजन लेकर आप लिख सकते हैं. अगर हम इसको इग्नोर करके चलें, इस फैक्टर को हटा दें, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगी, वो एक फ्रैक्चर्ड होगी. वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का भी नॉलेज ज़रूरी है. इस स्ट्रक्चर पे आप अपने आंसर को बिल्डअप कर सकते हैं. लॉजिकली देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आंसर कुछ लिख दिया आपने, कुछ लिख दिया. हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल डिज़ाइन तो होगा ना आंसर का. ऐसा थोड़ी होगा कि अप्रोप्रिएट जो आंसर कहते हैं. तो इसमें क्या मतलब है, मतलब कि रीज़न पूछ रहे वाई, तो आप फोकस करें वाई पर, रीज़न दें उसका. तो डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा रीज़न पे फोकस करेंगे, क्यों ऐसा ज़रूरी है, तो आपको मार्क्स आएंगे. विच एग्जाम्पल यू पिकअप दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. हमने सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, आप कुछ भी एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम्पल ले लो, लेकिन आंसर्स इसी डिज़ाइन पे आंसर होंगे. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. और आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस में आप पूरी समझ से आंसर लिखिए, आपको डेफिनेटली मार्क्स आएगा यूपीएससी में. हमने देखा है कि हमारे कई स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो अच्छे आए हैं, कुछ मिडिल रेंज में भी है. तो क्या कारण है, उनके आंसर्स को मैं अभी भी देखता हूँ, तो वो जब मैंने उनके आंसर्स को देखा तो वो समझ में आता है कि इनमें क्या लैक है. तो अगर मैं सजेशंस देता हूँ तो आप उस पर वर्क करेंगे तो अब इम्प्रूवमेंट आएगा. अगर आप टेस्ट देंगे और अगर सजेशन पे वर्क नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के पढ़िए. और क्लासेस में मैं सब कुछ बताता ही हूँ इस सब सारी चीज़ों के लिए, तो प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी चीज़ें हो जाती. लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे भी होती है कि आप उस सजेशन पे वर्क करें. क्योंकि एक 6 टेस्ट 8 टेस्ट में जो मैं फीडबैक देता हूँ, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक होता है, लेकिन उस फीडबैक पे वर्क करने की जिम्मेदारी और टाइम को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी होती है. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो अगले एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करिए सो दैट यू कुड परफॉर्म बेटर. और जो गलतियाँ आपने पिछले एग्ज़ाम में की है वो आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं. और अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको ज़्यादा परेशान करता है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको हिंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को अगले किसी लेसन में लूँ और आपको स्पेसिफिकली बताऊँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।